If you're a being and if you have an intuition, you can easily do telepathy. She came to us with literally 3 hemoglobin. हेजल नई नई हमारे घर पर आई थी ना, उसको ना चप्पल की आवाज से बहुत डर लगता था. आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट जब मैं बीमार पड़ती हूँ, लाइक फीवर पड़ता है या मेरी तबीयत बहुत खराब होती है, ऑटोमेटिकली उस टाइम के आसपास ही ना माइलो भी बीमार पड़ जाता है. हाय मंचकिन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. वेल, आज मैं बहुत प्रिटी फील कर रही हूँ. आई हैव डन दिस रियली नाइस मेकअप ट्यूटोरियल. आई फिल्म्ड इट फॉर यू गाइस. आई हैव एडेड ग्रीन eyeliner and I am feeling extra pretty because today I'm wearing our first sample जो हमारा द्री का न्यू कलेक्शन आने वाला है. It's a farsi set and we've have a matching salwar. I love this. This is actually our first sample. So we are launching Farsi sets because बहुत request आ रहे थे Instagram पे that we should do something similar to this, and we are of course adding our own twist. This is our first sample. We're still asking for feedback. So we will be adding pockets to the salwar because it just makes the entire outfit so convenient and it just makes so much sense. तो अभी मैंने Instagram पे आप लोगों से feedback मांगा है कि क्या क्या करना चाहिए. Of course we will be adding sleeves to other designs as well. But you guys seem to love this. This color is gorgeous, so keep an eye out. We will be launching our Farsi sets very soon. Meanwhile, you can check out our dresses that we've launched. We also have some really nice everyday or sort of like a vacation टॉप भी है. मतलब डिपेंड करता है आप कैसे स्टाइल करते हो. वी हैव सो मेनी आउटफिट्स दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट. सो गो चेक आउट आवर ड्रेसेस बिकॉज लेट मी टेल यू, हमारी ड्रेसेस बहुत प्यारी है. दे सो कन्वीनियंट टू वेयर बिकॉज दे कम विद पॉकेट. सो इफ यू आर वेयरिंग आवर ड्रेसेस एंड यू डोंट वांट टू कैरी अ बैग, यू लिटरली गेट पॉकेट्स बोथ साइड्स. जस्ट पैसे रखो, कार्ड रखो, एक लिप ग्लॉस रखो, sorted oh bro, literally sorted. So you're missing out on a lot of great new launches that we have. So definitely make sure that आप द्री का website check करो, and I've also tagged the products down below. Now आज की video is actually something that's very close to my heart. Last year, since I was very inactive on YouTube, I never really got the chance to share this beautiful experience, and I want to share more awareness about this because it is still so underrated. And अगर आप इस चीज के कॉन्टैक्ट में आ गए या अगर आपको उसे पता चल गया, there is literally no going back. Now you know for the fact that I am somebody who definitely believes in nazar. I also believe in good and bad energies, लोगों की energies, and I 100% believe that there are energies beyond our reach, and ये ऐसी चीजें हैं that you cannot even explain. Now today I want to talk about telepathy, and it's something that I've experienced so closely, and what a beautiful experience. So थोड़ा सा बैक स्टोरी करते हैं कि how I actually got to know about this. Now you guys know that I have 2 fur babies, Milo and Hazel. Milo is 6 and Hazel is our rescue dog, and she's been with us for 2 years, which I am assuming कि I guess वो 2 साल की तो हो ही गई है. तो since वो rescued है, हमें exact age नहीं पता है. So मेरा हमेशा से मन था कि मैं ना animal communication करूँ. इधर उधर कभी कभी ना Instagram में इक्के दुक्के मैंने वीडियोस देखे हैं, and मेरे को बहुत fascinate होता था. I've gotten in touch with multiple animal communicators to अंडरस्टैंड कि मैं माइलो का पर्सपेक्टिव जानना चाहती थी कि वो क्या खुश है घर पर, कि उसको खाना खाना पसंद है कि नहीं पसंद है. एंड ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स बच्चों का ना बिहेवियर चेंज होता है, बड़े होते हैं तो ऐसे शांत हो जाते हैं, फिर अचानक से मस्ती आ जाती है लोगों को. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड माइलो को क्या फील होता है. अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन कभी जमी नहीं बात, मतलब कभी हुई नहीं, कभी उन लोगों ने मैसेज नहीं पढ़ा, या अगर कभी मैसेज पढ़ा भी, कभी उनके घर पे कुछ हो गया. मुझे ऐसा लगता है कि भगवान उस टाइम पर नहीं चाहते थे कि मैं इन सब चीजों से एनकाउंटर करूं, या एनीथिंग फॉर दैट मैटर. लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदे से बात की, मैंने 2-3 बंदों से बात की एंड बिल्कुल भी नहीं जमी, मतलब हो ही नहीं पाया वो सिचुएशन. देन लास्ट ईयर आई गॉट अ ईमेल, ठीक है, फ्रॉम दिस गर्ल एनिमल कम्युनिकेटर. आई विल एड हर इंस्टाग्राम राइट हियर. शी गॉट इन टच दैट शी इज बीन अ फॉलोअर एंड शी इज एक्चुअली एन एनिमल कम्युनिकेटर, एंड शी वुड, एंड उसने शायद स्टोरीज देखी थी दैट उस टाइम में नई फ्रेश मैंने हेजल को रेस्क्यू करके हम लोग घर लेकर आए थे. सो शी सॉ दैट स्टोरी एंड शी रीच्ड आउट ऑन ईमेल दैट शी वुड वांट टू गिव अस अ सेशन, a few questions that we might have for Milo and Hazel, and वो अपने साइड से she'll communicate to our babies and वो सारे क्वेश्चन आंसर
होगा हमारा बेसिकली। स्टार्टिंग में आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि करूंगी नहीं, बट आई वाज लाइक कि चलो सामने से अपॉर्चुनिटी आई है तो कर लेते हैं, क्या पता भगवान का इशारा हो, क्या पता भगवान वांटेड अस टू एक्सपीरियंस दिस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप हेजल माइलो के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजो एंड आई वुड कम्युनिकेट टू देम एंड विल गेट ऑन अ कॉल, जहाँ पे आप मम्मा एंड बानू दीदी विल गेट ऑन अ कॉल एंड विल डिस्कस ऑल द आंसर्स जो माइलो हेजल ने दिए। नाउ आई वाज एक्स्ट्रा एक्साइटेड फॉर दिस सेशन बिकॉज हेजल नई आ रखी थी, शी वाज अ रेस्क्यू डॉग, वी डिड नॉट नो हर एज। डॉक्टर्स ने बोला दैट शी माइट बी अराउंड 6-7 मंथ्स। हमें पता नहीं था उसकी पास हिस्ट्री क्या थी, वाज शी अब्यूज्ड, क्या वो अपने घर से खो गई थी, क्या किसी डॉग ने अटैक किया था उसको, वी हैड नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू हर। सो आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उसका पास्ट क्या था एंड इज शी डूइंग ओके और नो। तो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजे उनको एंड आफ्टर अ फ्यू डेज वी हैड दिस सेशन, आवर फर्स्ट वीडियो कॉल विद द एनिमल कम्युनिकेटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैनी के बारे में बात की दैट मैनी क्या फील करता है, इज ही हैप्पी विद अस, ये वो। एंड नाउ एनिमल कम्युनिकेटर्स का ना एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है दैट दे विल नॉट आंसर क्वेश्चंस that can harm us or maybe ऐसी चीजें that shouldn't be shared with the owner. There are few set of guidelines कि वो ऐसे questions का जवाब देते हैं जैसे कि आपका favorite कौन है इसमें से, क्या ये वो questions की आपको मम्मी पसंद है या पापा पसंद है, ऐसा कुछ questions वो ना आंसर करते नहीं है typically। ये मतलब these questions are very biased for some reason I think, even though like she did answer these questions that I asked, उसने extra चीजें भी बताई माइलो के बारे में, ऐसे क्वेश्चन जो बस हम घर वालों को पता है, सोशल मीडिया पर नहीं है। Like no, I manage everything. मुझे सब पता रहेगा एंड जस्ट टेल देम कि मैं ऐसे पागल वागल नहीं बनने वाला हूँ। आई एम नॉट लाइक कि पता नहीं चलने देंगे और समथिंग लाइक दैट। अगर आप करने की कोशिश करो, गोदी पे ले जाओ, खाने में दवाई डाल के नहीं और समथिंग लाइक दैट, पता चल जाता है। खाने में नहीं देते हैं पर उसको सिरिंज से देते हैं, उसको पता चल जाता है जब सिरिंज निकल रहा होता है। He is showing me back seat पर, he is standing कार के अंदर and the car like obviously car drives सबसे पहले, but then he is like कोई वो street dog देखता है कोई बड़ा जिसको वो नहीं जानता हो, he gets very scared is what he is telling me. Okay. मैं जा रहा हूँ घूमने और something and whenever I see a street dog जिसको मैं नहीं जानता हूँ I get scared. बट कार ड्राइव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तेज गाने नहीं पसंद कार के अंदर। आई वॉन्ट कि हम शांति से जाए, हम शांति से पहुंचे एंड मम्मा ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, आपके बारे में बोल रहे हैं हिमाद्री, बट उनको बोलो कि शांत हो जाया करे एंड यू ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग कि व्हाई इज माइलो नॉट दैट एनर्जेटिक समटाइम्स, डू यू कि क्या हो गया, कुछ कर क्यों नहीं रहा हो, समथिंग लाइक दैट। She means to say जब से हेजल आई है, हेजल is the child of the house, so he has just settle down a little bit on his energy. Yeah, okay, yes, exactly. And that's what he is telling कि मुझे पसंद है मस्ती करना एंड एवरीथिंग, बट मैं मैनेजर हूँ, मेरे को सब चीज को मैनेज करके रखना है कि मैं कहाँ पर एनर्जेटिक हो रहा हूँ, क्योंकि फिर मम्मा रात में कभी कभी मेरे को बुलाती है अपने पास प्यार करने के लिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट कि यार तू आ जा, मेरे को तेरे से बात करनी है एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो अपनी एनर्जी बचा के रखता है हर चीज के लिए। He has that whole thing planned. I would say he is the mastermind. तो ही अच्छा वो चुपचाप रहता है इसलिए क्योंकि रात को आके एनर्जी उसमें दिखाई हाँ नहीं, नॉट जस्ट रात को, बट ही नोज कि अभी वो अपना एनर्जी डिवाइड करता है। हाँ, उसको पता है कि मेरे को कहाँ पर कैसे बिहेव करना है एंड ही इज अगेन सेइंग आई एम वेरी गुड लुकिंग, ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ही इज लाइक एक्चुअली ना हम सब लोग उसको बहुत बोलते हैं बहुत क्यूट है तो ऐसे जीप करता है करके ना ऐसे करता है। हाँ, he is saying that he really likes when you cook. Really? Himadri. Yes. क्योंकि when you cook pancake it's a mess at that time. He is saying it's a mess at that time. एंड जब आप बिल्कुल ऐसे हो जाती हो ना, एंशियस हो जाती है उस टाइम पे, नॉट एंशियस बट स्ट्रेस हो जाती है कि यार मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया, आप अपने आप को क्वेश्चन करती हो। सो इस वैसे मेरी मॉम मोस्ट ऑफ द टाइम पे काफी कॉन्फिडेंट रहती है, बट इस टाइम पर उनका एक्चुअल टेस्ट चल रहा होता है। सो आई रियली लाइक दैट एपिसोड दैट्स गोइंग अलोंग एंड उस टाइम पर हेजल इज मोस्टली स्लीपिंग एंड मैं देख रहा होता हूँ उस टाइम पे अपने पैर ऐसे क्रॉस करके शोइंग मी कि वो देख रहा है आपको एंड यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग जैसे जैसे तैसे करके हो जाए। Okay, that's another thing which she told me. अब और पूछती हूँ मैं। She's showing me a big garden, a very big garden. Has she ever been to a place like that, garden or something? Yeah, on Milo's birthday. माइलो के बर्थडे पे गई थी। Yeah, Milo's birthday. हाँ, so she's showing me that place कि उसको वहाँ जाना अच्छा लगता है, is what she's telling me. And
शी इज टेलिंग मी व्हेन यू गेट वेरी एक्साइटेड, हिमाद्री आपके लिए कह रही है कि आप जब बहुत एक्साइटेड होती है तो हेजल को भी बहुत खुशी होती है. So cute. Okay. नहीं, खासतौर से जब हिमाद्री रेडी हो रही होती है ना, तो वो उस समय बहुत एडमायर वो बहुत फैसिनेट होती है, मैं मेकअप, कपड़ों, ज्वेलरी, ये सब देख के बहुत खुश होती है. उसको लगता है ये घूमने The first thing was we always felt that Milo feels that he is the owner of the house and हम यहाँ पे रेंट पर रहते हैं because he has such a big boss personality and एकदम चौड़े में जीता है. like वो कुछ गिरा तोड़ भी देगा, वो इतना चौड़े में चिल बनता है that उसको पता ही कोई कि तो मुझे मारेगा नहीं, तो मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. So we always thought that he had that boss personality. When we were having this conversation, she mentioned that Milo अपने आप को घर का ओनर नहीं समझता है. Milo इस घर का मैनेजर समझता है अपने आप को. नाउ मैनेजर इन द वे दैट ही एग्जैक्टली नोज घर पे कब क्या बात चल रही है, कौन से कबर्ड में क्या रखा है. ही ऑलवेज सिट्स इन अ पोजिशन घर के जहाँ पे ही नोज पूरे घर का व्यू मिल रहा है, एंड विच इज सो ट्रू. माइलो ऑलवेज सिट्स एट एन एंगल घर के जहाँ पे उसको हर चीज दिख रही है. लाइक मेरे बेड के कोने में बैठेगा जो जहाँ से पूरा घर दिखता है, मूवमेंट दिखता है. या अगर घर में कभी राशन आता है, ही विल गो टू द किचन एंड ही विल लिटरली लुक एट ऑल द थिंग्स कि इस कबर्ड में ये रखा है, इस घर में इस कबर्ड में वो रखा है. ही लिटरली नोज एग्जैक्टली क्या चीज कहाँ पड़ी है. शी ऑल्सो मेंशन्ड दैट ही considers himself as a manager and he is here with us for a purpose. Now हर animal का ना एक purpose होता है. Animal क्या, हर एक soul का एक purpose होता है if they are a part of your life. Now माइलो के बहुत सारे ऐसे instance बोले जहाँ पे I have a lot of gut issues. आप लोगों को पता है मेरे मुंह में बहुत छाले होते हैं, ये वो. I have always noticed that जब मैं बीमार पड़ती हूँ, like fever पड़ता है या मेरी तबीयत बहुत खराब होती है, ऑटोमेटिकली उस टाइम के आसपास ही ना माइलो भी बीमार पड़ जाता है. सो दैट एनिमल कम्युनिकेटर शी टोल्ड मी दैट माइलो को बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड वो कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है बिकॉज आपको गट इश्यूज है. एंड आई वाज लाइक मेरे को गट इश्यूज है तो माइलो को क्यों कॉन्स्टिपेशन होगा. सो शी सेड दैट माइलो, नाउ दीज सोल्स एनिमल्स दे टेक ऑन नेगेटिव energies that is around you or something negative that is going to happen to you, they take that on themselves. ठीक है, and we cannot do anything about this. This is how nature is apparently. So जब मेरा गट खराब होता है या जब मेरी तबीयत खराब होती है, जब मेरे को छाले होते हैं, मेरे साथ since Milo is linked, उसको constipation होता है, उसको गट issues हो जाते हैं. I also have a very bad habit कि मैं खड़े खड़े किचन में खाना खाती हूँ. लिटरली मैं वहीं पर किचन में खाना शुरू कर देती हूँ. I don't sit and तो मैं पीसू लोग के नहीं खाती हूँ. माइलो ने लिटरली एनिमल कम्युनिकेटर बोला है कि मम्मी को बोलो, लाइक मैं मम्मी को बोलो दैट आराम से खाएं बैठकर, मम्मी अपने खाने का ख्याल नहीं रखती है, वो बहुत जल्दी जल्दी खाती है. यू टेल मी ये एनिमल कम्युनिकेटर को कैसे पता होगा दैट आई ईट वेरी फास्ट एंड मैं बैठकर नहीं खाती, मैं अपने खाने का ध्यान नहीं रखती. शी वेरी स्पेसिफिकली मेंशन दैट. अराउंड दैट टाइम इनफैक्ट मम्मी और मेरा जिस दिन हमारा कॉल हुआ था उससे 4-5 महीने से हम लोग मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे दैट वी वांटेड टू चेंज आवर सोफा बिकॉज काफी पुराना हो गया है एंड आई थिंक वी नीड टू हैव अनदर सोफा एंड ऑल दैट. एंड आउट ऑफ nowhere very randomly she mentioned that Milo ये बोला है that आप सोफा चेंज करना चाह रहे हो, राइट? तो मम्मी और मैं ऐसे थी कि इसको कैसे पता दैट हम लोगों को सोफा की बात करनी, बिकॉज वी बीन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन फॉर सो मेनी मंथ्स दैट सोफा चेंज कर लेते हैं. उसने बोला है दैट माइलो ने कहा है कि प्लीज सोफा मत चेंज करो क्योंकि उसको पता दैट यू गाइस हैव बीन कंसिडरिंग चेंजिंग आवर सोफा. ही लव्स दिस सोफा एंड उसको बहुत मजा आता है सोफे में एंड ही वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ये सोफा मत चेंज करो बिकॉज उसको बहुत मजा आता है. My mind was little like on the floor, like how can someone else know that Mama and we've been having a conversation that we want to change our sofa. Around that time itself, भानु दीदी का ना कुछ hair fall का issue चल रहा था. She mentioned that Hazel ने भानु दीदी को बोला है कि आप बहुत ज़्यादा tension ले रही हो इसलिए आपको hair fall हो रहा है and I think you need to start taking care of yourself and take थोड़ा सा less anxiety and all that कि आपका hair ठीक हो जाए. Bro, भानु दीदी and we were so shocked that how can these kids know exactly what is happening. I was so fascinated with all these things. माइलो ने ऐसी बातें बोली हैं जो I could have never imagined. उस टाइम पे ना मैं घर पे ना बहुत लाउड म्यूजिक चलाती थी, अगरबत्ती, सेंटेड कैंडल्स, ये वो. एंड हेजल ने एक्सप्लिसिटली बोला है कि मम्मी को बोलो कि इतना कैंडल अगरबत्ती ना जलाए, मेरा सर दर्द होता है और मेरे को अच्छा नहीं लगता जब मम्मी रात को टीवी देखती है, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस होती है आवाज से क्योंकि माधुरी अपेरेंटली बहुत लेट 3 बजे तक मूवीज देखती है. एंड आई वाज लाइक ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग. हमारे किचन के ना बगल में
देयर इज अ वेरी छोटू सा वॉल जहाँ पे हमने की होल्डर लगा रखा है, कार के कीज, घर के कीज, ये सब हम टंगाते हैं. दैट एनिमल कम्युनिकेटर सेड दैट हेजल बोल रही है जो आपके किचन के बगल में एक पतली सी दीवार है जहाँ पे आपने कीज लगाए. उस एनिमल कम्युनिकेटर को नहीं पता हो सकता ये चीज, बिकॉज वो पोर्शन लोगों ने नहीं देखा है मेरे वीडियोस में. दैट आपको जहाँ पे वो छोटी सी दीवार है जहाँ पर की होल्डर लगाया है, आपको वहां पे गमला लगाना चाहिए. एंड आई वाज लाइक ब्रो, हमारी बच्ची इंटीरियर लाइट चली गई थी. एंड आई वाज लाइक ब्रो, हमारी बच्ची इंटीरियर डिजाइनर. वी ऑल्सो आस्क्ड हेजल कि उसका पास्ट कैसा रहा है, इज शी डूइंग ओके. सो अपेरेंटली हेजल ने बोला दैट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट शी इज एडजस्टिंग वेरी वेल. शी इज मूव्ड ऑन फ्रॉम हर पास्ट बिकॉज अपेरेंटली वो जहाँ पे रहती थी वो एक ब्रीडर हाउस था एंड एक आदमी था ब्रीडर. सो वो हेजल को ना दरवाजे के अंदर बंद करके रखता था, भूखा प्यासा, नो वाटर, नो फूड, नथिंग. एंड हेजल जब चिल्लाती थी फॉर फूड वाटर, वो उसी रूम में बंद करके रखते थे उसको, वहीं पर सुसु, वहीं पर पॉटी. और जब वो भूख या प्यास से चिल्लाती थी या बोलती थी तो वो रूम खोलकर उसको ना चप्पल से ना सर पे मारते थे. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी नोटिस दैट जब हेजल नई नई हमारे घर पर आई थी ना, उसको ना चप्पल की आवाज से बहुत डर लगता था, या कोई भी चप्पल की आवाज भी नहीं, मतलब कोई बहुत लाउड सा ऐसे बैंग होगा ना, वैसे डर जाती थी, मतलब पूछ दबा के एकदम कोने में घुस जाएगी. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि वो लोग उसे मारते थे तो इससे वो ना घबराती थी लाउड नॉइज से. एंड शी ऑल्सो मेंशन जहाँ पे वो रहती थी वहां पे ना लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते थे. वो बहुत वीक हो गई थी, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, हड्डियां निकल गई थी. एंड जब ब्रीडर्स को लगा कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती सिंस शी इज फीमेल, और उसको यूज ही बच्चा पैदा करने के लिए रखा था, या वो बिकी ने या व्हाटएवर, उसके ब्रीडर ने किसी आदमी को कांटेक्ट किया. उसके ब्रीडर ने नहीं फेंका, एक आदमी ने इसको थैले में डाला, थैले में बांधकर कूड़े में फेंका. कैरी मैं रो रही थी. आई ट्राइड एस्केपिंग दैट कूड़े का डब्बा, बट अनफॉर्चुनेटली सिंस उसके बॉडी में खाना पीना नहीं मिलता था, उसके बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी. शी केम टू अस विद लिटरली 3 हीमोग्लोबिन. कह रही थी मैं रो रही थी, मैं अंदर में मैं बचना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी, बट मेरे अंदर जान नहीं थी कि मैं भाग सकूं या मैं उस कूड़ेदान से निकल सकूं. किसी ने मुझे उठाया, देखा, एंड देन मैं रेस्क्यू एनजीओ आई. बट शी सेड दैट शी इज वेरी ग्रेटफुल दैट शी केम टू अस. कह रही मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, दिस इज लास्ट ईयर, हाँ, नॉट नाउ. मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है घर में. ये घर बहुत भूलभुलैया है उसके लिए, अपेरेंटली हेजल के लिए, कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं हिमाद्री के रूम में जाऊंगी, पर फिर मैं चलते चलते किसी और रूम में पहुंच जाती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गई. और फिर जब मैं पीछे माइलो को मुड़कर देखती हूँ तो माइलो हंसता है मेरे पर, और माइलो बोलता है कि तू कितनी पागल है, तेरे को अभी तक नहीं पता चला कि तेरे को इस रूम में जाना है और तू गलत रास्ते जा रही है. उसने ये बोला, उसने कहा उसको माइलो से डर लगता है क्योंकि माइलो उसको बहुत डांट लगाता है, माइलो उसका बहुत मजाक उड़ाता है. उसको लगता है कि कभी कभी अगर वो माइलो से कुछ पूछेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं, तो माइलो उसको सोचता है कि ये कितनी पगली है कि ये नहीं कर सकती. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई लिटरली क्राइड व्हेन आई हर्ड दैट हेजल ने लिटरली ये बोला, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट. एंड उसको बहुत सेफ फील होता है हमारे घर पर. एंड शी इज मूव्ड ऑन फ्रॉम वट एवर ट्रॉमेटिक पास्ट दैट शी इज हैड, एंड शी इज ट्राइंग टू गेट बेटर, एंड शी इज मेंटली डूइंग बेटर. उसने ये भी बोला दैट माइलो एकदम बंदर की तरह दिखता है, तो कभी कभी वो भी मजाक उड़ाती है उसका. ओके, माइलो लव्स टेडी बेयर्स, हाँ, बचपन से ही इज ऑब्सेस्ड विद टेडी बेयर्स. सो उसने बहुत स्पेसिफिकली बोला कि उसको एक रेड टेडी बेयर चाहिए एंड उसको जाके वो शॉपिंग करना है. माइलो ने ये भी बोला दैट ही नोज दैट ही इज वेरी गुड लुकिंग एंड ही इज वेरी वेरी स्मार्ट एंड क्यूट. एंड ये एनिमल कम्युनिकेटर ने बोला. एंड जब मैंने सोचा इसके बारे में, मुझे पता चला दिस मेक्स सो मच सेंस, बिकॉज जब से माइलो हमारे घर में आया, जब से वो बच्चा था जिसके दांत भी नहीं थे, डे 1 से लेकर डे आज तक, we've always told Milo that he's very good looking, he's very smart and he's very cute. मतलब हर सुबह शाम दोपहर दिन भर मैं बस ये बोलती हूँ मेरा बेटा तो कितना क्यूट है, माइलो तो सबसे प्यारा बच्चा है, माइलो तो ये है, माइलो तो वो है. It just made so much sense that Milo knows and he thinks that he's very cute because उसको हमने बचपन से दिमाग में फीड कर रखा है कि ये तो बहुत क्यूट है, ये तो बहुत ही गुड लुकिंग है. These are some things जो these are not generic, right? These are very personal questions. जैसे कि they know exactly दीदी के लाइफ में क्या चल रहा है. इवन दो she does not live here, she lives in Bangalore. They hear everything and they sense everything because दीदी and I, we are almost all the time on call. And ये लोग कॉल में आवाजें सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं. जब भान दीदी स्ट्रेस होती है, उनको ये समझ आता है कॉल पर कि भान दीदी सैड है, तो उन्होंने एग्जैक्टली भान दीदी के लिए जो उनको मैसेज देना था उन्होंने वो बताया. And animal communication is not only about having dogs. You can have communication with their souls. जो आपके पास जो souls है, जो आपके फैमिली में जो बच्चे थे who are not with you anymore, you can communicate with your plants and all that. I'll get back to all that. So since
this session was so beautiful and literally it touched my heart. I was like, bro, I really need to understand what is this thing. So I started doing my research. मैंने खूब सारी YouTube वीडियोस देखी, मैंने खूब सारे आर्टिकल्स पढ़े, खूब सारी रिसर्च की एंड आई गॉट टू नो एनिमल कम्युनिकेशन मोटा मोटा इसको कहते हैं टेलीपैथी. एंड टेलीपैथी होता है जहां पर आप एक जगह बैठे बैठे ग्राउंडिंग करके यू कैन कम्युनिकेट विद एनी सोल. दैट सोल कैन बी ऑफ एन एनिमल, इट कैन बी ऑफ अ ह्यूमन, इट कैन बी ऑफ अ प्लांट, इट कैन बी अ सोल दैट हैज पास्ड ऑन, इट्स नॉट इन अ फिजिकल बॉडी. यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद एनर्जीज. लाइक मैं इस रूम के एनर्जी से बात कर सकती हूँ, मैं एक लैंड के एनर्जी से बात कर सकती हूँ. I can do so much, right? So this is telepathy, and telepathy has been around for years and years and years. It's not a new thing that's here. पुराने बहुत ज़माने पहले लोग telepathy से ही communicate करते थे. So one random day I came across this YouTube video of Reshma ma'am. She's an animal communicator and she's been around for a lot of years. She's vegan and what a beautiful human being. So I saw her entire YouTube video and I was so fascinated that I DM'd her on Instagram and I was like, hi ma'am, I saw this YouTube video and it really touched my heart. I was literally in tears when I was watching one of her podcasts and I was like, ma'am, if you have any workshops that's happening, please consider me in because I would love to know more about this. We had a workshop for around I guess 4-5 days, I think that, and of course there was some charge ye wo, and we were a group of like 5-6 ladies. I was the youngest to be honest, but it was beautiful and everyone had a purpose why they joined this session. किसी को किसी के गाय से बात करनी थी, किसी गाय के बच्चे से बात करनी थी, किसी को अपने प्लांट से बात करनी थी. मुझे एनिमल कम्युनिकेशन सीखना था बिकॉज आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प एनिमल एनजीओज जब एनिमल्स खो जाते हैं. नाउ इस पॉडकास्ट में ना मेरे को ओवरव्यू दिख गया था, पता चल गया था कि व्हाट इज टेलीपैथी, हाउ इट वर्क्स तो नहीं पता था, बट मेरे को पता चल गया था व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस सेशन सिंस मैंने फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस किया था माइलो हेजल के कम्युनिकेशन के टाइम. मेरे हाथ दुख गए तो मैंने हेजल के रैबिट में माइक लगा दिया है. वी स्टार्टेड ऑफ विद session, and before I tell you my experience, I just want to give a huge shout out to Reshma ma'am. What a beautiful woman, what a beautiful human being. My mind was blown by her knowledge. My mind was blown because I could see myself in her. जब मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मतलब अभी of course मैं बड़ी हो रही हूँ, in the future I would love to be not exactly like her because I don't think so I can be her, but I would love to achieve whatever she's achieved and achieved in a way that I would love to have that knowledge that she has. Because bro, I swear to God, I've never met such a beautiful human being. I mean, she's an ideal for me, such an inspiration, I swear to God. I will add her Instagram. I will also link the podcast that I saw of hers jahan se I got to know about her. So we had this the first session was all about what is animal communication and all that. So animal communication is a subcategory of telepathy. So basically telepathy is an umbrella and उसके अंदर बहुत सारे different communications आते हैं. इसमें plant communication आता है, lost and found communication आता है, soul communication आता है. आप land के साथ भी communicate कर सकते हो. You can as an architect and interior designer, if you feel that you have this creative block, you can communicate with your house and understand ki what is the energy that the house is giving. If they want a pink wall, they would literally guide you ki you do this, you do that. The first session was all about giving an idea what is telepathy and all that. Very explicitly she mentioned that telepathy is not something that only गिने चुने लोग कर सकते हैं. Literally कोई भी telepathy कर सकता है. A very good example of that. Have you ever met a human being or have you ever been to someone's house and आप अंदर जाते हो तो आपको अजीब सी एनर्जी आती है, या अगर आप किसी इंसान से मिलते हो आपको बहुत अजीब वाइब्स आती है उस इंसान से. कभी कभी किसी इंसान से मिलते हो आपको लगता है कि यार ये बंदा कितना फाड़ है यार, कितनी अच्छी एनर्जीज है. That is your intuition. Telepathy is all about following your intuition and trusting your intuition. हमारे लाइफ में knowingly unknowingly हमारे intuitions are always heightened. If you're a being and if you have an intuition, you can easily do telepathy. So we had our classes. She taught us how to do grounding. She taught us how to focus, how to do lost and found cases, and she shared a lot of cases उनके अपने. I'll share a few example of her cases. मेरे cases तो अलग ही थे. So एक बार वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, रेशमा मैम अपने शायद किसी फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी कुछ खाने के लिए, डोसा वोसा, एंड वहां पर एक कॉकरोच आया, 2 कॉकरोच आए, ठीक है, उनके टेबल के पास. तो नेचुरली अगर आप फूड वाली जगह पे देखोगे कि वो कॉकरोच आ गया तो यू वुड बी फीलिंग लाइक कितना अनहाइजीनिक है, ओ माय गॉड, इसको मारो, इसको भगाओ, इस पे हिट मारो, ये वो. एंड वहां पे
आई गेस रेस्टोरेंट वाले लोग दे केम आउट टू किल दैट कॉकरोच, बट रेशमा मैम को फीलिंग आई कि नो, लाइक अभी मारो मत, लाइक रहने दो उसको। तो अपेरेंटली उसमें से ना एक फीमेल कॉकरोच थी और एक मेल कॉकरोच थी। दैट फीमेल कॉकरोच कम्युनिकेटेड रेशमा मैम से एंड उसने उसे बोला कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं जीने वाला है, दैट मेल कॉकरोच, एंड ही वांट्स टू हैव अ बाइट ऑफ योर डोसा। तो रेशमा मैम ने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दैट। तो उनका डोसा आया, उन्हें छोटा सा एक डोसा का पीस कॉकरोच को दिया। वो दूसरा वाला कॉकरोच आया, उसने डोसे का पीस खाया, he literally fell down and he died. Can you process this information? There have been multiple times जहाँ पे she is found lost and found cases. A very beautiful book I would suggest जो रेशमा मैम ने हमें suggest की थी. Wait a second, I'll show you guys. Okay, so these were the two books that she recommended. The first one is Many Lives, Many Masters, and this is based on real life incident. It's about a girl and it's basically about a psychiatrist that meets a girl and उस लड़की के इतने in depth sessions हुए हैं इस आदमी के साथ that guy never actually thought that he would encounter something like this. He was entirely very, you know, based on science and ये वो spiritual चीजों पे बिल्कुल believe नहीं करना, and he never thought that उसको जरूरत भी थी. But when he came across it's Dr. Weiss something and he encountered Catherine and she was going through something in life and she was not able to figure out like what was wrong with her. So she had a few sessions with him. Her session में she spoke about the different lives that she took before this life. Like उसने बहुत सारे rebirths ले रखे थे इस लाइफ में, जो उसकी मदर थी या बॉयफ्रेंड थे या जो थे वो उसके लाइफ में, कभी प्रीवियस लाइफ में they were a part of her life. कभी वो किसी का पति था, कभी भाई था, या कभी किसी का एनिमी था, किसी ने उसका खून किया था. एंड एवरी टाइम शी died and she took another birth. After death जो वो time period आता था, they spoke about this. What an incredible book. You guys need to check this out. And it's real life पर based है. हाँ, this is एकदम कुछ कहानी नहीं बनी हुई है. This is real life. Crazy book. मेरे goosebumps आ गए थे when I read this. The next one is Death by Sadhguru. I haven't read the entire book, but this goes beyond death. Like, what is death? If someone is going through that experience, like maybe you've lost somebody and you're not able to understand how to cope up with life. कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी की डेथ होती है दैट मैं तो जिंदगी खत्म हो गई है and I don't think so I can cope up with that. This is a beautiful book. It makes you understand a little more about death and it is not something about that you need to be scared of. So again, a very beautiful book. So these two books I read it and I think it's incredible. You guys should too. जब हम टेलीपैथी के सेशंस कर रहे थे ना, हम लोगों को ना डेथ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया because we really need to know the concept of death, since telepathy में you also communicate with souls that are not in a physical form. I'm not very active with the entire telepathy thing because I have been very busy with life and I was very caught up. मैंने काफी सारे cases किए हैं though. I understood, but it needs a lot of time, practice, patience and a lot of, you know, trial and errors से भी होता है. मतलब experience से आप और polished होते रहते हो. She taught us about death and she told us, you know, हमारे जो fur babies होते हैं हमारे आसपास या बच्चे होते हैं हमारे आसपास, they are very sorted with the concept of death. उनके लिए death is not अब तो मैं अपने physical body में नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा. No, nature is so balanced and sorted in a way that उनके लिए death is part of life. And death does not mean that you've left your body तो सब खत्म. No, it goes beyond that. Your soul never dies. They understand it very well. Did you guys know that our fur babies, they know exactly how and when and at what time they will pass away? How crazy is that? And sometimes आपने पता नहीं आपने नोटिस किया, आपने आसपास देखा है कि नहीं, but I have experienced that when you see that your pet is very very बीमार and you're always telling him that please मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, stay here longer, they know that you need them and they will take that extra step of being a little more miserable और अपने physical body में वो रहकर वो pain झेलते रहते हैं, जीते रहते हैं because apparently हम उनके बिना नहीं जी सकते. So even though they are ready to let go of it, they would still stay back for you because they know that आप उनके बिना नहीं रह सकते. A very beautiful thing is when you see that a being is being suffering or something like that, या अगर आपके family member में कोई बहुत बीमार है and if you tell them subconsciously only that you run free, it's okay. I get it, you are suffering a lot. You can leave your body. I will be okay. Like आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि मेरा क्या होगा. You will see they will go very peacefully because their body is ready
and their soul is ready to leave their body. It is just about you letting it go. And बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं लॉस्ट एंड फाउंड में, जहाँ पे मैम ने हमें बताया था, जहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि एक पैरेट अपने घर से गुम गया था. मैम ने कम्युनिकेट किया था क्योंकि उनके जो पैरेट के पेरेंट्स थे वो बहुत परेशान थे कि कहाँ गया, मिली नहीं गया. पैरेट थी या कैट थी, आई गेस, सॉरी कैट थी. मैम ने 3-4 बार कम्युनिकेट किया तो उस कैट ने बोला आप यहाँ पे आके देखो, इस गली में आके देखो, एंड मैं ऐसे मिलूंगी. इवेंचुअली लास्ट में समझ नहीं आया, मिली नहीं कैट. मैम ने फिर से कम्युनिकेट किया एंड उसने ना कुछ रैंडम नंबर्स दिखाए. नाउ दे डोंट कम्युनिकेट लाइक द वे आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू. दे कैन कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म बेसिकली. यू कैन हैव लाइक फ्लैशेस ऑफ इमेजेस, यू कैन टेस्ट देम, यू कैन हियर देम, यू कैन फील गूज़बम्स आ जाएंगे. सपोज अगर आपका पेट किसी बहुत ठंडी जगह पे है तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे. या गर्मी में है, you'll start sweating, मतलब AC ऑन है but still you start sweating. अगर विजन अगर आपका स्ट्रांग है, सबके सेंसेस में से कुछ एक चीज बहुत स्ट्रांग होती है. जैसे मेरे लिए मेरे विजन बहुत स्ट्रांग है या मेरे स्मेल बहुत स्ट्रांग है. सो सपोज अगर कोई खो रखा है एंड आई टॉक टू देम कि कहाँ हो बेटा, ये वो एंड ऑल. अगर सपोज वो फ्लावर के पास तो खुशबू आएगी फ्लावर्स के, वो आपको सेंस करेगी कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत फ्लावर्स है. या एक बार ऐसा हुआ था कि एक डॉग था, वो ना मंदिर के पास था. मंदिर डॉग था या एक कोई एनिमल था. एंड जब मैम ने कम्युनिकेट किया तो बहुत सारी मंदिर की घंटियां सुनाई दी, तो पता चला वो एनिमल मंदिर के आसपास था. एंड दे वर एबल टू फाइंड हिम एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जहां पे दे मेंशन दैट आई एम हियर. तो उस कैट ने फ्लैशेस ऑफ वर्ड्स दिखाए लाइक W2 समथिंग ऐसा करके कुछ. जब उन्होंने देखा कि अरे हाँ यहाँ पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे W करके ऐसे लिखा हुआ है, वो लोग ढूंढे उस बिल्डिंग में गए. वो ऊपर बैठी हुई थी छज्जे पर, एग्जैक्टली उसी नंबर उसी घर के बाहर जो उसने मैम को बताया था. और वो मैम वहां नहीं रहती थी जिस एरिया में वो खो रखी थी, वो किसी और स्टेट में कहीं रहती है. सो do you can you even process this information? Like how cool is that and how beautiful? Like there's so much that we need to learn about universe and हमने अभी कुछ भी नहीं देखा है जिंदगी में. You can also communicate with human souls but it's not encouraged. हम लोगों को बोला नहीं था कि अभी मत करना, because since animals, plants and these beings are so pure with intentions, इनमें चोरी चकारी भी नहीं, मतलब their intentions are not toxic or it's not manipulated like humans बहुत manipulate करते हैं अपनी intentions. ये वो animals are just pure. They're just there. इनके साथ communicate करना is good, but if you're communicating with a human soul, you need to protect yourself and your family as well because you never know. So it gets deeper and deeper. There are so many incidents जो उन्होंने हम लोगों के साथ share किए थे and I literally had goosebumps. My first case was beautiful, okay? First case was amazing. उन्होंने बस बोला कि there's this dog, इसका नाम ये है and just ask her कि वो कहाँ है, कैसी है, what's her favorite thing to do, उसका फर का कलर क्या है, ये वो. तो भी आई स्पोक टू हर कि हाय मेरा नाम हिमाद्री है, ये वो, एंड व्हाट इज योर फर का कलर. सो शी टोल्ड मी दैट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट. एंड उसने मुझे एक घर दिखाया एंड उस घर में बाहर वरांडा था एंड एक गार्डन था एंड I still have that book with me. Just give me a sec. So the first case is Uno right here. उन्होंने हमें केस दिया था Uno का, नेम है डॉग का Uno एंड हमें टास्क मिला था to observe how he looks like physique wise and if ये वो ठीक है. एंड ask Uno what he does the entire day. Would he like to show his house, what he looks like and what are his food habits. Does he like to show or talk to about his parents, about toys. कभी कभी ऐसा भी होता है if animal is not in the right mood, और ऐसा होता नहीं, कभी मना करते हैं, बट जैसे हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, हर एनिमल की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है. कई आपने देखे होंगे कि आप किसी इंसान से बात करते हो वो बहुत बात करता है, आप एक चीज पूछोगे वो 10 चीजें बता देगा, और कभी कभी आप किसी से एक चीज पूछोगे वो एक चीज भी नहीं बताएगा, द वन लाइनर्स में जवाब देगा. एंड ऐसे एनिमल्स भी ऐसे ही बात करते हैं. सो हम लोगों को ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे. सो आई स्पोक टू Uno. So उसने मुझे कहा था he looks like a white fluffy cute chubby big boy. He loves walks, he loves chicken rice and उसको birds chase करना बहुत पसंद है. He has a black gate and he likes to sit there. उसके घर का एक black gate है. He waits for his parents since they all sit together and he likes to admire them when they sit for tea in the evening in their balcony and they have a TV which he sees a lot. पापा mostly काम पर busy होते हैं but he is good.
ही इज गुड टू हिम. उसके पास एक ग्रीन कलर का स्क्वीकी टॉय है. ही हैज हैड दिस ग्रीन टॉय फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड इट इज हिज फेवरेट टॉय. एंड उसके कुछ लेग नीज में कहीं प्रॉब्लम है एंड इट डजंट हर्ट ऑल द टाइम बट समटाइम्स हर्ट होता है. अदरवाइज ही इज गुड एंड ऑल दैट. तो हमने जब ये सब चीजें शेयर की, आंसर्स जो हमने बात की उनों से, तो मैम ने बताया दैट ही इज एक्चुअली अ लैब्राडोर एंड ही इज नॉट इन हिज फिजिकल फॉर्म एनी मोर. वी वर एक्चुअली स्पीकिंग टू अ सोल एंड वी डिड नॉट नो अबाउट इट. ठीक है, जब मैम ने बताया देन आई वॉज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स दैट व्हेन आई आस्क्ड हिम कि वेयर ही वाज, ही बेसिकली उसने मुझे दिखाया कुछ बहुत हेजी सा क्लाउड्स जैसा. इट वाज नॉट प्रॉपर लाइक विजिबल नहीं था. सो मोस्ट प्रोबेबली सिंस ही इज नॉट इन हिज विजिबल बॉडी, इसलिए सब कुछ बहुत हेजी था. एंड ही इज अ लैब्राडोर एंड ही वाज ब्लैक इन कलर एंड सिंस उसके एज के कारण उसने व्हाइट पैचेस अपने बॉडी में क्रिएट कर लेते, व्हिच इज अ व्हाइट फ्लफी बिग डॉग चबी बॉय. उसको चिकन राइस बहुत पसंद था. उसके घर के आसपास एक्चुअली में एक वरांडा था एंड वो अपनी मम्मी के साथ शाम को बैठकर बर्ड वॉचिंग करता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था. एंड दिस वाज माय फर्स्ट केस ऑफ ऊनो एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गाइस. मैं बता नहीं सकती कितना. आई हैव सो मच टू शेयर विद यू गाइस दैट कितना कुछ होता है, दैट यू कैन टॉक टू देम, आस्क देम इफ they've taken a physical body, if you're talking to a soul, and so much more. And because this video cannot be that long, मैं सब कुछ तो नहीं share कर पाऊंगी, but I just would say that telepathy is such a beautiful experience. And if you want to get the communication done, you can definitely get that. Go for it because I have done that communication. I'm not active though. मैंने अपने friends के dogs के साथ communicate किया है. मैंने अपनी भानु दीदी के birds के साथ communicate किया है. One passed away, so I spoke to her. बच्चे ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं when you don't even realize cheeses and they just know, and so many things. There are so many cases that I can talk about, but since video बहुत छोटा है, I just wanted to experience this beautiful experience that was a part of my life, is a part of my life, and I think you should experience that too because wow. If you want, I can make a part 2 and I can share more experiences because I think that would be wonderful if that is something that you are interested in. And yeah, I hope you guys enjoyed watching and listening to this beautiful experience of mine. I hope you guys enjoyed. If you did, you know exactly what to do. Hit the like button, share this video with your friends and family, and I'll see you guys in the next video. Bye!